Good evening. Welcome back to another class of human reproduction. In the last class, we discussed a very important topic, that is human menstrual cycle. Correct? So, pura 1 hour of entire span was given for that particular, dedicated for that particular topic. We are quickly revising what we did in the last class. And also we have to complete these two structures which we have drawn on the board, structure of the ovum and structure of the male sperm. So a quick recap. I told you that in the last class I told you I will give you an infinity diagram. We'll also discuss a lot of questions which I have got from you guys. We'll try and understand all the possibilities with respect to this particular topic. Okay? So a quick recap of what we spoke in the last class. We spoke about the hormones, we spoke about the roles of the 4 hormones in the female menstrual cycle. Okay? And 2 hormones are gonadotropins, which are released by the anterior pituitary. 2 hormones are from the ovaries, which are progesterone and estrogen. It is very important to remember the source of the organisms, because source के ऊपर आपको questions आ सकते हैं MPSC level पे, ठीक है? But for your foundation basis, you are also responsible to understand the source of these hormones, because ये already हमने कर रखा है, ठीक है? तो source of gonadotropins is anterior pituitary, source of estrogen is greatly it is granulosa cells, and minimal secretion है, that is from the corpus luteum. ठीक है? Similarly, we also spoke about progesterone. Progesterone का only source is corpus luteum. I told you corpus luteum is a temporary gland. It is a temporary gland which functions in the last 14 days of the menstrual cycle. ठीक है? After that, the corpus luteum degenerates and yet another cycle starts. What will happen if the female gets pregnant? If the egg is fertilized, the corpus luteum maintains or remains as corpus luteum for the next 9 months, 9 months 10 days, and after 9 months 10 days also corpus luteum remains as corpus luteum for the next 6 months, which leads to a process called as lactational amenorrhea. मतलब the breastfeeding female will not have menstrual cycle. ठीक है? On an average breastfeeding का टाइम स्पैन ये होता है कि 6 महीने के गैप, इसीलिए बच्चे जब भी होते हैं ना बेटा, तो 6 months तक the lady will not produce any type of egg. So how much ever the parents want to how much ever the parent want to have the child, they will not be able to the female will not be able to conceive because of the absence of egg in that next 6 months. इसलिए 2 बच्चों के बीच में कम से कम 8 या 1 साल का फर्क होता है. कितने भी कैसे भी धुरंधर पेरेंट्स हो, बट इतना बेसिक गैप तो होता ही है. मिनिमम गैप इज 8 months. ठीक है? बिकॉज 6 months तो नेचर ही हमको अलाउ नहीं कर रहा. ठीक है बेटा? So that is associated with respect to the corpus luteum. Now let's try to understand the role of these hormones and how do we understand the concept of birth control pills. बर्थ कंट्रोल पिल का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. दैट इज अभी इसी को कंटिन्यू करके हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बात करेंगे. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वी विल हैव टू टॉक अबाउट. आई विल टेक रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑनलाइन. ठीक है? तो हम वो मेरे पास उसका प्रेजेंटेशन है, सो वील टेक अप लाइव लेक्चर्स फॉर दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. उसके लिए मैं कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो बच्चे सिर्फ बार-बार वही एक चैप्टर सबका फेवरेट होता है, तो रिपीट मोड में वही पता चले उसकी व्यूज और उसकी लाइक्स बहुत ज्यादा हो गई. तो आई एम बीइंग वेरी पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू दिस. आई डोंट नो व्हाई, बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल कीप अप. We'll take up live session because that is much more convenient for me and for you also, because I've got a very beautiful presentation for that, and subsequently we can understand that chapter also. ठीक है? All right. So moving ahead with the topic with respect to menstrual cycle. ठीक है? हमने बात किया था कि initially when you talk about the positive and negative feedback, ठीक है? चलो पहले तो हम वो पाई डायग्राम, हम वो इन्फिनिटी चार्ट याद करते हैं और इन्फिनिटी चार्ट के हिसाब से हम लोग हार्मोन्स की फंक्शंस को याद करेंगे.
ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड बेटा, दो हार्मोन जो डायरेक्टली लिंक्ड है, एक ओवेरियन हार्मोन और एक एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, दो हार्मोन जो डायरेक्टली लिंक्ड कौन सा है, एफएसएच और ईस्ट्रोजन, एफई। तो चलो लिख लेते हैं, दिस इज फॉर योर माइंड मैप, ठीक है। तो ऊपर से आया कौन, एफएसएच, एफएसएच आया, तो एफएसएच ने क्या किया, folliculogenesis, मतलब in other words aggregation of granulosa cells. The more the number of granulosa cells, the more is the concentration or the more is the production of estrogen. So FSH ने क्या किया, FSH ने directly estrogen को stimulate किया, ठीक है। और LH, LH सुपर H है, LH क्या कर रहा है बेटा, LH डायरेक्टली किसको स्टिमुलेट करेगा, PRG को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, क्योंकि LH ओव्यूलेशन कराएगा, ओव्यूलेशन होने के बाद बचा हुआ जो कॉर्पस, बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल है, रेमिनेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल अंडरगोस रिग्रेशन एंड दिस रिग्रेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। सो इनडायरेक्टली बोलो या डायरेक्टली बोलो, LH इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ PRG. In other words, if one hormone is giving a positive stimulus for the secretion of the other hormone, that's called as a positive feedback. ठीक है, फीडबैक का मैंने आपको फंडा और इससे भी पहले बताया है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, बिकॉज़ हार्मोन्स आर कंट्रोल सिस्टम, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल, ये कंट्रोल, दो टाइप के कंट्रोल सिस्टम है, वी स्पोक अबाउट दैट, नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। चलो, नर्वस कंट्रोल के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस, external stimulus is the point which understands, external stimulus is that phenomena which understands कि चलो बस हो गया, मतलब आप अगर सूरज को देखने की कोशिश कर रहे हो, you will be able to keep your eyes open for a stipulated period of time, and after that automatically your eyes will start closing off. Why? Because here the stimulus of light, right, directly sun को देख रहे हो, which is basically the source, so the stimulus of light directly influences your it affects your photoreceptor cells, जिसके वजह से बहुत हाइपर स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से टेक्निकली your eyes are not adapted to gain so much of adapted to take so much of light, so automatically आप बंद हो जाती है, तो here it is controlled, ठीक है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दीज हार्मोन सिस्टम कैसे कंट्रोल करेंगे, हाउ, व्हेन विल द बॉडी अंडरस्टैंड कि अब ये हार्मोन का प्रोडक्शन रोकना है ना। आई टोल्ड यू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अगर एक इंसान स्ट्रेस में चले जाता है, बहुत टेंशन लेता है, तो उसके बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे, एंड आफ्टर सडनली when you are out of that particular scenario, the glucocorticoids का सिक्रेशन रुक जाता है। तो टेक्निकली बोलने का मतलब ये है कि बॉडी को कैसे पता चलता है कि one hormone has to be produced and the other has to be other का production has to be stopped. So that works with the principle of feedback. And feedback, understand this, feedback can be due to some hormone or it can be due to some external, not external but some optimum homeostatic condition. जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इनका फीडबैक बहुत फेमस है ना। इंसुलिन कब रिलीज होगा बेटा, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में से ग्लूकोज किधर फेंकना, इन दी मसल्स फॉर हाइपर एक्टिविटी। सो हियर फॉर इंसुलिन the stimulus, the positive feedback for insulin is high blood glucose. Similarly, the positive feedback for glucagon is low blood glucose. So here insulin and glucagon are antagonistic hormone, but the hormone is not influencing the secretion. What is influencing the secretion? The body condition. So that can be a positive feedback. But यहाँ पे this is too positive feedback. Positive feedback का मतलब ये है कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को बोलेगा, अरे और करो, और सिक्रेशन करो, और प्रोडक्शन करो, ठीक है। सो सेम इज द कंडीशन। अगर आपको कोई नया टीचर इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपसे फीडबैक पूछा जाता है, राइट, सो हाउ मेनी पीपल, अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो हम उस टीचर को आगे काम कराएंगे। दैट मींस टेक्निकली इफ वन हार्मोन गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक टू द अदर हार्मोन विल कीप ऑन इट्स वर्क बाय increasing the concentration or by producing its steady amount in the blood. But what if negative feedback, अगर आपने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, हम वहां पे ऐसे ही रोक देते हैं, है ना, और बोलते हैं कि आगे काम मत करो। सेम इज द कंडीशन। सो अगर एक हार्मोन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, सो द अदर हार्मोन एब्सोल्युटली स्टॉप्स इट्स सिक्रेशन एंड द एक्जिस्टेंस ऑफ दैट हार्मोन इन द ब्लड इज एब्सोल्युटली डिक्रीज्ड। समझी क्यों? ठीक है। तो एफएसएच ईस्ट्रोजन है, एलएच प्रोजेस्टेरॉन है। एफएसएच डायरेक्टली
ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करेगा, LH FSH ईस्ट्रोजन को करेगा, LH प्रोजेस्टेरॉन को करेगा, ठीक है। बट एक बात ये है बेटा, FSH अगर LH को कर रहा है स्टिमुलेशन तो माय मिस्टेक, अगर मैंने गलत बोल दिया, FSH LH यहाँ पे बेटा, FSH और ईस्ट्रोजन का अगर पॉजिटिव कनेक्शन है तो FSH बढ़ा तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा। बट अगर ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, व्हाट इज दैट इंडिकेशन? इट इंडिकेट्स दैट द ओवम हैज फुली डेवलप्ड। सो अगर ओवम फुली डेवलप्ड है ना, तो नेक्स्ट FSH का रोल नहीं है। FSH अभी नेक्स्ट 15 दिन के गैप के बाद आने वाला है, बिकॉज़ 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है बेटा, एंड आफ्टर दैट 14th डे, after the 14th day, the next 14 days are being controlled by your estrogen. So technically, when estrogen is super high, you do not want FSH, because already it is an indication. If your blood levels of estrogen is super high, that is an indication that your follicle is completely developed. If your follicle is completely developed, you don't want more FSH. So in other words, increasing concentration of LH gives increasing concentration of estrogen. Increasing concentration of estrogen gives a negative feedback to LH. My mistake. Increasing concentration of estrogen gives a negative feedback to FSH. सिमिलरली यहाँ पे भी वैसी है। प्रोजेस्टेरॉन अगर सिक्रीशन हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने के बाद क्या LH का रोल है? बिकॉज़ LH तो बन गया, LH ने तो कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया, ठीक है। आफ्टर दैट LH डज नॉट हैव अ रोल, राइट? एग इज बीन ओव्यूलेटेड, LH का मेजर काम ही ओव्यूलेशन है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना है। एक बार कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद PRG प्रोड्यूस हो रहा है ना। सो टेक्निकली व्हेन ब्लड लेवल्स ऑफ PRG इज वेरी हाई, यू डोंट वांट LH। सो इन अदर वर्ड्स, PRG is also giving a negative feedback to, so यहां पे मैं लिखूंगा stimulates, इधर भी क्या लिखूंगा बेटे मैं, stimulates, ये लाल अक्षरों से लिखूंगा, है ना, inhibits, इधर भी inhibits, ठीक है। ये तो समझ गया। अभी तक इंफिनिटी बनी नहीं है ना। इंफिनिटी बनाने के लिए नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन FSH एंड PRG, ईस्ट्रोजन एंड LH। FSH और ईस्ट्रोजन का रिलेशन हमको समझ गया, ठीक है। बट ईस्ट्रोजन और LH का क्या रिलेशन है, राइट? ईस्ट्रोजन और LH का क्या रिलेशन है, हियर अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा अपन लिंक लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। FSH बढ़ा तो FSH सब्सिक्वेंटली क्या इंक्रीज कराएगा? साइज ऑफ द ओवम, ठीक है। तो घूम फिर कर बात यह है कि FSH बढ़ा तो ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ेंगे, ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़े तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर ग्रैन्युलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ईस्ट्रोजन विल बी एट इट्स पीक, है ना। ईस्ट्रोजन अपने चरम पे, आई डोंट नो व्हाई आई saying this, but estrogen will be at its peak when the ovum is completely developed, ठीक है, and LH acts on the completely developed ovum. So घूम फिर कर बात ये है, अगर मेरे को LH को रिलीज करवाना है from the anterior pituitary, I require a stimulus. अचानक से exactly 14th day पे कैसे LH निकलेगा, है ना। तो it is a systematic process, it is a nicely orchestrated process, right? तो अगर ईस्ट्रोजन इंक्रीज्ड है, बहुत हाई इंडिकेशन है, तो ईस्ट्रोजन का हाई होना ही, ठीक है, ईस्ट्रोजन का हाई होना ही इट इज एन इंडिकेशन दैट द ओवम इज फुली मैच्योर। अगर ओवम फुली मैच्योर है तब आकर LH को आना चाहिए। सो घूम फिर कर बात ये है, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ईस्ट्रोजन गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक टू LH। समझ में आ रहा है बेटा? ये हिंट है ना। आई टोल्ड यू एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे पता चलेगा कि अभी LH रिलीज करवाना है, तो उसका स्टिमुलेशन क्या है, उसका इंडिकेशन क्या है? ब्लड में अगर इफ देयर इज मोर अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, स्पाइक अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, और इन अदर वर्ड्स ईस्ट्रोजन सर्ज, दैट ईस्ट्रोजन सर्ज इज रिस्पांसिबल फॉर द LH सर्ज। सो यहां से लेकर यहां पे ईस्ट्रोजन और LH का क्या रिलेशन है? ईस्ट्रोजन और LH का रिलेशन क्या है? स्टिमुलेट्स। इतना समझा बेटा? ठीक है। एट हाई कॉन्सेंट्रेशन स्टिमुलेट्स, यहां पे लिख रहा हूं मैं,
एट, गंदी हो गई, रुको, at high concentration it stimulates, I don't want to spoil this diagram, at high, मैं लिखा के नहीं लिखूंगा तुम लोगों को, high concentration it stimulates LH, but at low concentration it will stimulate, it will in मतलब at high concentration it will stimulate FSH, at low concentration it will stimulate FSH, ठीक है। at high concentration मैंने अगर वापस I am repeating my things once again, at high concentration it will give a positive feedback to LH, ठीक है। at high concentration, ये दोनों हाई हाई का दिया है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक हमेशा हाई कंसंट्रेशन के हिसाब से ही काउंट करते बेटा, बिकॉज एक हार्मोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से दूसरा हार्मोन इंक्रीज होगा, दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। सो टेक्निकली एफएसएच धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ग्राफ ऑफ ईस्ट्रोजन आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन द ग्राफ ऑफ ईस्ट्रोजन रीचेस इट्स फर्स्ट पीक, ईस्ट्रोजन हैज टू पीक हियर, फर्स्ट इन द इनिशियल 14 days, तो दैट फर्स्ट पीक गिव्स राइज टू स्टिमुलेशन ऑफ एलएच, ठीक है। सो घूम फिर कर बात ये है, इसका इंक्रीज कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, सो एलएच सर्ज हुआ, एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी ईस्ट्रोजन एट हाई कंसंट्रेशन इनहिबिट्स एफएसएच, बिकॉज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन का इंडिकेशन क्या है कि ओवम पूरा बनकर तैयार हो गया, नाउ यू डू नॉट वांट नेक्स्ट follicle to develop, तो FSH का रोल is being rested for the next 14 days, समझी हो, ठीक है। कुछ इधर देखो, प्रोजेस्टेरोन और FSH का क्या रिलेशन है बेटा, बताओ। प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज हो रहा, इट इज बीन रिलीज आफ्टर 14 days, ठीक है। तो ये 14 डे क्या है, मैंने आपको ये भी बताया था कि 14 डे इज अ प्रेपरेटरी पीरियड, इट इज जस्ट the endometrium prepares itself to receive the fertilized ovum, मतलब घूम फिर कर बात ये है कि nature is wanting that अंधेरे में तीर छोड़ना। So technically बोलने का मतलब क्या है, your the endometrium is preparing itself, you don't know what is the random chance, right? You absolutely don't know what is the random chance, कभी एक fertilize होगा, कभी एक fertilize नहीं होगा, and humans are not seasonal breeders, right? So humans are perennial breeders, मतलब टेक्निकली annual breeders बोलो, तो you really can't wait for that luck by chance condition, right? So यहाँ पे बोलने का मतलब ये है बेटा कि प्रोजेस्टेरोन जब increased रहेगा in the next 14 days, so that next 14 days is for the preparation of the fertilized egg, ठीक है। अगर फर्टिलाइज एग नहीं रहा तो एंडोमेट्रियम वापस गिर जाएगा, तो नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाएगा। सो घूम फिर कर बात ये है कि अगर ब्लड में अगर प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा है, क्या एफएसएच की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एफएसएच कब काम करता है, फर्स्ट 14 डेज, प्रोजेस्टेरोन कब काम करता है, लास्ट 14 डेज। सो घूम फिर कर बात ये है कि इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PRG, I am repeating myself, increasing concentration of PRG gives a negative feedback to FSH, ठीक है। क्योंकि ये अगर 15 दिन काम कर रहा है तो ये उस टाइम पे काम नहीं करेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि FSH is also giving a negative feedback to PRG, ठीक है। क्यों PRG, बट हम ये कंसीडर नहीं करते बेटा, बिकॉज़ FSH जब ही रहेगा तो PRG नहीं रहेगा, PRG जब रहा तो FSH नहीं रहेगा ब्लड में। सो घूम फिर कर बात क्या है, इट गिव्स अ नेगेटिव फीडबैक टू, बन गया इंफिनिटी, है ना, इट गिव्स अ नेगेटिव फीडबैक टू, इधर लिख रहा हूं बेटा मैं, इनहिबिट्स। तो इसको याद करने बहुत सिंपल है, क्या लिखना है आपको, FE, FSH ईस्ट्रोजन, LH PRG, ठीक है। LH PRG, FSH और ईस्ट्रोजन का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। LH और PRG का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। So always घूम फिर कर बात यह है कि gonadotropins always give a positive feedback to the ovarian hormones, but when you talk about the estrogen for FSH at high concentration की बात हो रही है ब्लड में, तो estrogen gives a negative feedback to FSH,
PRG gives a negative feedback to LH, ठीक है। सिर्फ ईस्ट्रोजन इकलौता ऐसा हार्मोन है जो at high concentration gives a positive feedback to LH, PRG gives a negative feedback to LH। सिर्फ आपको अगर याद भी करना है तो FSH लिखो, ईस्ट्रोजन लिखो, नीचे डाउनवर्ड एरो डालो, स्टिमुलेट्स, ठीक है। ईस्ट्रोजन को उल्टा एरो बनाओ, इनहिबिट्स, और बीच में जो है ना क्रॉस है ना, तो बीच में क्रॉस है, और क्रॉस तो कभी सही नहीं होता है ना, तो इस यहाँ पे थोड़ा सा झोल है। Estrogen at high concentration gives positive feedback to LH and PRG gives a negative feedback to FSH, ठीक है। अब छोटा सा एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बर्थ कंट्रोल पिल्स। ओके, now birth control pill में what are we basically trying on? We are trying so that even if the couple wants to have a unprotected sex with an exception, with the intention of having a child, ठीक है, but still with on that particular point, नहीं मैंने ऐसे बोला कि if the couple, देखो हस्बैंड वाइफ है ना, बेडरूम की बातें हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे, तो बात ये है that for now they are not prepared for the child, ठीक है। So rather than, and they want to have a unprotected sex, they don't want to use a barrier, ठीक है। अब उसके भी several reasons होते हैं, they don't want to use a barrier, so what is the condition, what alternative can you suggest, ठीक है। One alternative is we can put the female on birth control pills, ठीक है। birth control pills का मतलब सिर्फ आई पिल नहीं होता बेटा, ठीक है। आई पिल इज अ मॉर्निंग आफ्टर पिल, इट इज गिवन पोस्ट सम हादसा, मतलब इट इज गिवन पोस्ट द अनसर्टेन कंडीशन, ठीक है। इट इज गिवन पोस्ट द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। बट इफ अ पर्सन इज एब्सोल्युटली फोरसाइटेड एंड इफ दे आर प्लानिंग, इफ दे वांट टू हैव अ नाइस फैमिली प्लानिंग, मतलब अभी भी शादी हुई है, अब अगले 5 साल में बच्चे करने हैं, तो दे विल हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर 5 years, है ना। वो अपने आप पर तो भरोसा नहीं कर सकते, करेक्ट। दे विल हैव टू प्लान दिस 5 years। सो ये 5 साल में ईदर दे हैव सेवरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफर्स मतलब ऑप्शंस, दे हैव सेवरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस, ठीक है। अब now they can choose any particular, either they can go for IUD intrauterine device, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी कोई बच्चे ने मेरे को पिल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो we will discuss that also here in this particular condition, ठीक है। now pills भी अलग अलग टाइप के पिल्स आते हैं। one of the safest pill is the daily pill, ठीक है। Here the female will have to keep a track of her menstrual cycle, ठीक है, and generally females रखती है वो सब चीजों का ट्रैक। तो here the everyday pill जो है, everyday pill is less harmful and जो weekly pill है that is comparatively more harmful। so everyday pill में करते क्या है, we are trying to जो natural process है ना, नेचुरल प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ द ईस्ट्रोजन, डिक्रीज ऑफ द ईस्ट्रोजन, है ना, इंक्रीज ऑफ द एफएसएच, ये नेचुरल प्रोसेस है। हम एफएसएच और एलएच को नहीं टारगेट कर सकते, बिकॉज बेटा ये कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपके पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहा है। सो वी कैन नॉट टारगेट देम, बट व्हाट कैन वी डू इज वी कैन इंट्रोड्यूस दीज हार्मोन्स, दैट इज अपना ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। So synthetically we are being able to synthesize or make estrogen and progesterone, ठीक है। तो ये हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है in the human blood, technically in the form of pills, ठीक है। so ये जो everyday pills होते हैं बेटा, ये everyday pills का काम ही ये है कि the adjustment, आप ऐसे everyday pill को कोई भी पिल नहीं ले सकते, ठीक है। it is day number 1 से day number 30, that is why I told you this technique needs a discipline. The female will have to keep track of each and every day if she has taken the medicine. If she skips the dose, उसको उस दिन का डोज, फॉर एग्जांपल उसने 7th डे का डोज स्किप कर दिया, so now वो ये नहीं कर सकती अरे मेरे पास तो और मेरे अगर ये वाला 7th वाला डोज नहीं लिया तो और भी there will be doses which will be left, पैसे नहीं बचा सकते इधर बेटा। 7th दिन का डोज अगर आपने नहीं लिया है तो you will have to discard that particular dose and you will directly have to take up the 8th dose. So that is why it is a
calculative process, it is a tedious process for the female. ठीक है, that is why I told you females life is much more complicated and much more compromised with respect to their body, with respect to all the physiology and several other factors. I really don't want to get into the topic of gender equality here. ठीक है, come back. So जो मॉर्निंग आफ्टर पिल होती है, मॉर्निंग आफ्टर पिल रोज लिया जाता है. मॉर्निंग आफ्टर पिल से टेक्निकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. ठीक है, तो घूम फिर कर बात यह है कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज एडजस्टेड. ठीक है, तो आप ये इमेजिन कर लो कि अचानक से जो बॉडी बना रही थी, बॉडी एस्ट्रोजन बना रही थी, है ना, बॉडी एस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम को रिपेयर कर रही थी. ठीक है, एंड इन दी पिल इफ यू इमेजिन कर लो कि अगर आपने पिल में प्रोजेस्टेरोन पिल ले लिया, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल ले लिया, ठीक है, सो सडनली बिकॉज ऑफ दैट पिल प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ गया. आपके बॉडी में क्या चल रहा था? एस्ट्रोजन वाज सब्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग. ठीक है, नेचुरल प्रोसेस में एस्ट्रोजन फर्स्ट 14 डेज की बात हो रही है बेटा, फर्स्ट 14 डेज में एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को रिपेयर कर रहा है, तो थिकनिंग इज टेकिंग प्लेस. But because you have taken that pill and that pill contains progestin, progestin is the synthetic form, the market name of progesterone. ठीक है, तो अचानक से उस लेडी ने क्या कर लिया? प्रोजेस्टेरोन कंज्यूम कर लिया. अब प्रोजेस्टेरोन का अचानक से कंसंट्रेशन बढ़ गया. ठीक है, अब अचानक से ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन जब बढ़ गया, व्हाट इज इट हैपनिंग? It is mimicking the next 14 days of your cycle. अचानक से क्या हो गया? फर्स्ट 14 डेज में प्रोजेस्टेरोन को आना ही नहीं चाहिए था. ठीक है, बट नेक्स्ट फर्स्ट 14 डेज में अगर प्रोजेस्टेरोन आ गया, ठीक है, इट इज मिमिकिंग द नेक्स्ट 14 डेज. सो अचानक से जो एस्ट्रोजन है, आई टोल्ड यू इट इज बेस्ड ऑन दिस कंसंट्रेशन. सो एस्ट्रोजन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है और अचानक से पिल की वजह से प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया. ठीक है, सो दिस कंडीशन, ये कंडीशन अपने कब देखा है? नेक्स्ट 14 डेज में देखा है. और ये कंडीशन में तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, दैट विल मेंटेन द इनकम्प्लीटली थिकेंड एंडोमेट्रियम. मतलब एस्ट्रोजन अभी तक अपने चरम पर पहुंचा ही नहीं, अपने पीक पर पहुंचा ही नहीं. ठीक है, एस्ट्रोजन का ब्लड कंसंट्रेशन इज प्रीटी लेस, but in that pretty less concentration it was able to synthesize, or it was able to thicken the endometrial lining. ठीक है, और अचानक से प्रोजेस्टेरोन बढ़ने की वजह से वो थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वही मेंटेन हो जाती है. मतलब द कंप्लीट एंडोमेट्रियल फॉर्मेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस. ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स दैट थिन एंडोमेट्रियम. एंड मेरे को पता है अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो भी बच्चा गिर जाएगा. क्यों? Because endometrium thick है ही नहीं. It is not hostile. The environment of the uterus is not hostile to accept a fertilized egg. So that is how ये सब strategies है कि हम pregnancy को पीछे ढकेल सकते हैं. We can absolutely without harming the body. That is very important because any particular pill or any particular drug you take, ultimately it enters your physiological process. ठीक है, and ultimately every particular process has its own disadvantage. A simple respiration also has its own disadvantage. So here again it is very important to get back to safe methods of birth control. समझी क्यों? ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे. जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब यहाँ इसमें लिख दिया है ना, तो आप बहुत अच्छे से ये सॉल्व कर सकते हो. समझ गया बेटा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टॉपिक है हम यहाँ पे खत्म करते हैं. एंड अ फ्यू स्टूडेंट्स आल्सो आस्क्ड मी कि व्हाट इफ यू गेट अ 3 मार्क क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन एंड हाउ मच डू यू नीड टू राइट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, so you start with what is the definition of menstrual cycle, you write what is menarche, you write what is menopause, जैसे आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है. Then in short you write in one sentence, you write the process is being orchestrated, the process takes place because of the decreasing concentration of these 4 hormones. 2 of them are secreted by the anterior pituitary, 2 of them are secreted by the ovary. तो लिख दो, 3 पॉइंट इधर बन गए. ठीक है, उसके बाद आप उसको ये भी लिखो कि बाद में आप शॉर्ट पे लिखोगे. जितना मैंने आपको नोट्स में बोर्ड पे लिखाया था उतना ही आपको लिखना है, बिकॉज 3 मार्क के लिए आप पूरी रामायण नहीं लिख सकते.
ठीक है, तो आपको 3 मार्क के लिए सब्सिक्वेंटली हाफ अ पेज लिखना है, दैट हाफ अ पेज इज एब्सोल्युटली शॉर्ट में आंसर लिखना, बट you should be very peculiar and you should outcast yourself and show that examiner that you know a lot. ठीक है, so इसलिए आपको जैसे मैंने डेज लिखा है, आपने ओवेरियन साइकिल एक्सप्लेन करना है, आपने यूट्राइन साइकिल एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और उसको बस जैसा मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, जैसा मैंने आपको बोर्ड पे उधर लिखवाया था, एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी कर लिया, तो आपको 3 के 3 मार्क गारंटी। उसके ऊपर अगर आपने ये वाला पाई चार्ट बना दिया तो मैं तो बोलता हूं एग्जामिनर पप्पी दे देगा आंसर शीट को, ठीक है। तो दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू योर we end up this particular section here, ठीक है। Now what you can see on the board is the ultra structure of I will have to erase this for now because मेरे पास बोर्ड छोटी है, मेरे को मैनेज करना पड़ता है ना सब चीजों पे, तो मैं बीच का इतना रीजन इरेज कर रहा हूँ। If time permits, I told you, if time permits, we will also take up another topic that is oogenesis. Ideally, I will have to do oogenesis first and then understand the topic of structure of ovum, but let me see how much time we have consumed. Alright, so it is pretty 30 minutes only. So now let's see, we can complete both oogenesis and ultra structure also. So we'll first take up oogenesis and then we'll take up ultra structure of sperm and ovum. ठीक है, अब ओवम का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको oogenesis की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। And when you say oogenesis, what are we talking about oogenesis? It is the formation process of formation of female gamete, that is oogenesis, ठीक है। अब how is it different? Definitely it is different from male and female. In male and female the gametogenesis is different in male and female, that is but इसीलिए तो हम बोलते हैं कि मेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो बहुत लंबी चलती है। मतलब टेक्निकली if a person decides, a 60-year-old person, a 50-year-old person, a 70-year-old person decides to have a child, he can still have a child because he can still produce a 70-year-old man can also produce a sperm, but please understand that the amount might decrease, ठीक है। हमने ये भी बात किया था कि in approximately 5 to 10 ml of semen 300 million sperms होते हैं, 300 million sperms, ठीक है। एक पर्टिकुलर इजैकुलेशन में 300 million sperms are being released, मतलब रेस में कितने स्पर्म्स पार्ट ले रहे हैं, 300 million sperms, and out of that only one particular sperm gets the ability to fertilize the ovum, but that cannot be a condition with respect to the 70-year-old man. So घूम फिर कर बात ये है कि amount he will have अजोस्पर्मिया मतलब डेफिशिएंसी या ओलिगोस्पर्मिया. ओलिगोस्पर्मिया इज वेरी फ्यू स्पर्म्स इन द सीमेन. तो ये कंडीशन हो सकता है ना मेल में, बट फीमेल में द रिप्रोडक्टिव लाइफ इज एब्सोल्युटली रेस्ट्रिक्टेड. दिस अगेन इसीलिए जो हम ये ना स्टीरियोटाइपिक आउटलुक है, अगर घर पे बच्चा नहीं हो रहा तो हम वी आर ओनली targeting or stigmatizing the female on that particular point, but here understand that there are several other diseases which a male also contracts, ठीक है. And so people are absolutely not bothered with respect to the problems or defects with the male because things are easily repairable there. But for a female, one important fact which is to be taken care of is the female has to provide a hostile environment. मैंने आपको एंडोमेट्रियोसिस बोला था कि अगर एक लेडी को एंडोमेट्रियोसिस है वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकती. मतलब टेक्निकली she will be able to produce the ovum, but she will have to look out for a surrogate. ऐसे बहुत सारी हिंदी मूवीज बनी होंगी, आपने भी देखा होगा, ऑल दैट स्टूपिड लॉजिक से, है ना, कि मेरे पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा तो कोई और पत्नी को लेके आए. ये सब चीजें बहुत कॉमन है, बट दैट उसी का एक साइंटिफिक अप्रोच अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो it is pretty stigmatizing that only females are considered to be the reason कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है, और females are only considered to be the reason कि घर पे बच्चा नहीं हो रहा है. बात somewhere down the line
again this is again a compromised condition which they have to live with. ठीक है, if a male is not able to produce gamete, ऐसा तो most of the times नहीं होता है, unless and until the male is completely infertile, the male is not able to have any particular conditions with respect, he is not even producing a sperm, इसका मतलब वो मेल ही नहीं है. तो ये कंडीशन है मेल में, because male is always the donor of the sperm, whereas female is the receiver and she has to provide a hostile environment. मतलब आपको घर का कंडीशन भी अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा. अगर घर की कंडीशन ही अच्छी नहीं है तो technically you will not be able to live there, right? So female is that particular condition. ठीक है, so female will have to provide a hostile condition, और endometriosis में hostile condition होता ही नहीं है. So अगर एक कपल IVF भी करवाता है, in vitro fertilization भी करवाता है, in that case also endometriosis की पेशेंट को बहुत most of the time सक्सेस नहीं मिलती. So घूम फिर कर बात ये आती है कि बच्चा चाहिए तो आप एक सरोगेट ढूंढ लो, और सरोगेट मदर बहुत पैसा खाते हैं. I'm not being very ethical in terms of my words, but then जो scenario ऐसे ही चल रहा है बेटा. ठीक है, so again one more reason why females are stigmatized or females are completely scrutinized for not having a child. ठीक है, अब let's try to understand the scientific approach. Why is the female's life so restricted? Why is that compromised condition arising in her life? ठीक है, why is that so much of leeway is given to the male and so much of harsh conditions are experienced by the females? So we'll discuss that. So ये जो debate है, ये जो view counter view का जो question है, the answer lies in the formation of gametes, the process of formation of gametes. ठीक है, in males the formation of gamete जो है that takes place after the puberty. My mistake, after the puberty, because technically go back to the intrauterine life, and I told you this particular thing that prior to 3 months, prior to the formation of placenta, all of us had a undifferentiated sex. So घूम फिर कर बात ये है, अगर मैं external sexual appearance की बात करूं, so all of us were female prior to the 3 months. It is post 3 months under the influence of the hormone testosterone, the primordial gonad now starts to develop into a primary gonad, and अगर testosterone रहा तो ये जो primordial gonad है उसमें changes आएंगे, architectural histological changes आएंगे, and that will ultimately give rise to a testis. बट अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं रहा बेटा, अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं रहा तो कोई चेंजेस आने वाले हैं क्या, है ना? तो अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं हुआ तो कोई चेंजेस नहीं है. सो द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी स्टार्ट्स इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, whereas the development of the sperm starts after the puberty. Please understand this. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म का मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस तो बेटा 14 इयर्स तक अप्रोक्सीमेटली, जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं होता तब तक टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, that is also we spoke about that is again by the gonadocorticoid secreted by the adrenal cortex. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की वजह से टेस्टिस की साइज इंक्रीज हो रही है, टेस्टिस की हिस्टोलॉजिकल सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, वेरियस अदर टाइप ऑफ सेल्स आर आल्सो गेटिंग डिफरेंशिएटेड एंड डेवलप्ड. बट एक्टिविटी चालू कब होती है उसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस चालू कब होती है, वंस द पर्सन हिट्स द प्यूबर्टी. मतलब टेक्निकली अगर उस पर्सन का कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, जो सिर्फ प्यूबर्टी के बाद होता है मेजरली, बिकॉज उससे पहले बॉयज और गर्ल्स में, मतलब जूनियर केजी सीनियर केजी में बॉयज और गर्ल्स में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो विद रिस्पेक्ट टू देयर साउंड आल्सो, right? Over a period of time, as a person hits the puberty, that is when the characteristic differences start appearing. Is that right? That is when you can differentiate or you can identify this as a male or a female, है ना? तो घूम फिर कर बात यह है कि मेल में the spermatogenesis starts after puberty, but for female this oogenesis already starts in the intrauterine, right? मतलब बिफोर बर्थ बहुत सारी चीजें हो जाती है, आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी बहुत सारी चीजें हो जाती है, और प्यूबर्टी के बाद बहुत सारी चीजें हो जाती है. सो वी विल टॉक अबाउट दैट. व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस डू
females experience. ठीक है, what are the stages of oogenesis? अब इसमें आपको याद रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने बात किया था the spermatogonium is the, गोनियम का मतलब क्या है बेटा? गोनियम माने हाउस. ठीक है, so spermatogonium is the house of sperm. मतलब घूम फिर कर बात ये है कि every spermatogonium is differentiated. उसका नसीब फिक्स हो गया कि इसको जाकर स्पर्म सेल ही बनना है, ये कुछ और नहीं बन सकता. ठीक है, तो सिमिलरली वी हैव अ सेल कॉल्ड एज oogoneum. समझ गए? स्पर्मेटोगोनियम oogoneum बनते किससे? जर्माइनल एपिथेलियम से. तो जर्माइनल एपिथेलियम जो है, अंडरस्टैंड, मैंने आपको बताया कि 3 महीने के बाद फीमेल का डेवलपमेंट चालू होता है. देयर आर चेंजेस व्हिच इज बीन एक्सपीरियंस्ड. बट अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है, वो सेम टू सेम ओवरी को डेवलप होना पड़ेगा. तो ऑलरेडी इन द डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन द इंट्रायूटेराइन लाइफ. ठीक है बेटा? तो घूम फिर कर बात ये है, after the 10th week of IUL, after the 10th week of IUL on an average अगर मैं कंसीडर करूं तो on an average 2 to 2.5 months. ठीक है, after 10th week of IUL the female 10th week 2 to 2.5 month. ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि 3 महीने तक का स्पैन है बेटा. ठीक है, 3 महीने तक का स्पैन हम कंसीडर करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ a male gonad from an undifferentiated one. So let's the process is a little different, so we'll try to write down here itself. ठीक है, so we started up with something called as, we have to start up with something called as germinal epithelium. Now I am not putting up here, मेरे को पता है कि आपको ये सब चीजें स्पर्मेटोजेनेसिस से पढ़ा है आपने कि 3 फेजेस होते हैं, दी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. ठीक है, वो भी हमने पढ़ाया था. और जर्माइनल एपिथेलियम से बनता है स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम इज स्टिल डिप्लॉयड. स्पर्मेटोगोनियम जो है साइज में इंक्रीज हो जाता है और बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज स्टिल डिप्लॉयड. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज फर्स्ट meiosis and it undergoes first meiosis में it becomes haploid, that is primary to secondary spermatocyte में secondary spermatocyte haploid है. अब secondary spermatocyte की कॉपी हो रही है और वो बन जाती है spermatid और later sperm. But for female it's a little more different. Now please understand, process पहले लिख लेते हैं. तो germinal epithelium की ploidy क्या है बेटा? 2n है. ठीक है, अब जर्माइनल एपिथेलियम क्या करेगा? जर्माइनल एपिथेलियम विल अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन. इट विल अंडरगो माइटोसिस एंड माइटोसिस से इट विल फॉर्म क्या है वो? oogonia. समझिए क्या? ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक ये कब हो रहा है बेटा? आफ्टर दी 10th week of IUL. 10th week of IUL से 25th week of IUL तक वो सारा का सारा जर्माइनल एपिथेलियम oogonia बन चुका. ठीक है, नाउ सो द फीमेल्स हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ oogonia. अब ये भी नसीब के ऊपर है. ठीक है, अगर oogoneal सेल ज्यादा है वो भी वेस्ट होते हैं. नाउ अंडरस्टैंड दिस, approximately a female in her entire lifespan can produce in her entire reproductive lifespan she can only produce 420 to 460 gametes. That's it, only 420 to 460. So on an average that is a pretty less number. So ये इतना chances है कि वो लेडी को बच्चे होंगे और इसी chances में उस लेडी को कंसीव करना पड़ेगा. If that exceeds, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी चांस हो जाता है, कभी कभी एक से ज्यादा, कभी कभी बहुत एक से ज्यादा ओवुलेट हो जाते हैं ना. There was this recent cases, I don't know, recent case where a lady delivered 6 different child. औरत है बिल्ली है समझ में नहीं आया. 6 different child. I mean that is again an astonishing fact. We were very happy with triplets and quadruplets, but then this was hexaplets technically. Again, a very rare phenomena. ठीक है? Anyway, let's come back on that particular point. So, germinal epithelium से oogonia जो है कब से चालू होता है बेटा? After 10th week of IUL. What is this process? How does this process
व्हाट इज द प्रोसेस रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ oogonia इज माइटोसिस। समझी क्या बेटा? तो घूम फिर कर बात यह है कि 10 वीक के बाद oogonia का फॉर्मेशन चालू हो गया और oogonia कंप्लीट फॉर्मेशन oogonia का हो जाता है टिल दी 25th वीक ऑफ IUL। ठीक है, इतना समझा बेटा? सो यहां पे हम लिख लेंगे कि आफ्टर 10th वीक इट स्टार्ट्स एंड इट कंप्लीट oogonia जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। oogonia फॉर्मेशन यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, it completes till 25th week of IUL, intrauterine life. So no new oogonia is been added after 25th week. तो यहां पे एक ब्रेक आ गया, एक जकात नाका आ गया। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं होने वाला। जितना oogonia से ऑलरेडी, सो दैट मींस द फेट ऑफ द चाइल्ड इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन द IUL। मतलब उसको कितने बच्चे होने, कितने एग्स डेवलप होने, ये ऑलरेडी IUL में डिसाइड हो गया। ठीक है, सो oogonial formation completes till 25th week of IUL. No new oogonia is added after 25th week. પછી oogonia से नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है बेटा? oogonia से नेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है माइटोसिस। अपना oogonia से नेक्स्ट प्रोसेस बनना चाहिए प्राइमरी oocyte। सो oogonia से बनता है बेटा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी क्या है बेटा? प्राइमरी oocyte का प्लॉइडी भी 2n है। ठीक है, अब oogonia से प्राइमरी oocyte कब बना? I told you oogonia 25th वीक के बाद ऐड नहीं होता, काम खत्म। अब जो चीजें होंगी oogonia से लेकर दैट इज प्राइमरी oocyte तक, यहाँ पे क्या हो रहा है? साइज इज ओनली इंक्रीजिंग। सो दिस फेज, ये इतना फेज को हमने क्या बोला था? दिस इज द मैच्योरेशन फेज, इफ यू रिमेंबर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन फेज। जर्माइनल से लेकर oogonia तक का फेज क्या है बेटा? मल्टीप्लिकेशन। मेरे पास जगह नहीं है तो समझ लो, मल्टीप्लिकेशन। પછી oogonia से oocyte का स्टेज क्या है? ग्रोथ। बिकॉज़ यहां पे क्या हो रहा है बेटा? सेल इज ग्रोइंग, ओनली oogonia will start, oogonia will grow, it will show growth। ठीक है, तो ये पहला फेज था, ये दूसरा फेज है। ठीक है, ग्रोथ। अब ग्रोथ के बाद मतलब घूम फिर कर बात यह है कि बच्चा जब डिलीवरी ये मैं यहां से निकाल रहा हूं बेटा। ठीक है, बच्चा जब डिलीवर हो जाएगा, आफ्टर दैट, आफ्टर बर्थ, मतलब द चाइल्ड विल बी बोर्न विद अ रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ oogonia एंड आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी कुछ तो डेवलपमेंट होगा, और वो डेवलपमेंट क्या है? oogonia से बनना प्राइमरी oocyte। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे मैं मल्टीप्लिकेशन ये सब कंफ्यूज नहीं करता हूं मैं। आई विल नॉट सॉइल अप द बोर्ड, तो मेक श्योर दैट यू कंपेयर इट विद द स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप वी नो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज मैच्योरेशन एंड व्हाट इज ग्रोथ फेज। सो आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन द बोर्ड। ठीक है, दो आई एम ओरली सेइंग इट टू यू गाइस। सो oogonia से oocyte कब बना? After birth till puberty, after birth and till puberty। समझा? तो ये एक हॉलमार्क, ये दूसरा हॉलमार्क। एवरी पर्टिकुलर हॉलमार्क इज टेकिंग प्लेस, एवरी पर्टिकुलर स्टेज इज टेकिंग प्लेस एट इट्स ओन रिस्ट्रिक्टेड टाइम। मेल के लिए इजी प्रोसेस है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिकॉज आपको अलग अलग लोकेशन याद करना, और लोकेशन और टाइम ड्यूरेशन भी बहुत सिंपल है याद करना। समझा बेटा? ठीक है, अब प्यूबर्टी तक क्या हो गया? सारा oogonia will develop into primary spermatocyte। मतलब अगर आपने एक 4 साल के बच्चे की ओवरी का सेक्शन लिया तो व्हाट यू विल फाइंड? यू विल फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब oogonia getting developed into the primary oocyte। ठीक है, 12 साल के बच्चे का अगर आपने एक क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी लिया तो आपको सारे प्राइमरी oocyte दिखेंगे, यू विल नॉट फाइंड oogonia देयर।
ठीक है। बट अगर आपने 4 साल के बच्चे का क्रॉस सेक्शन लिया तो यू कैन स्टिल फाइंड oogonia इन दैट पर्टिकुलर ओवरी, ठीक है। बट 12 साल में आपको oogonia नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको प्राइमरी oocyte दिखेगा। अब प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनता है बेटा सेकेंडरी oocyte। सो दिस प्रोसेस इज बाय meiosis 1। I really don't want to change the color form, तो मुझे करने दो वैसे ही। ग्रोथ અહીંયા meiosis લખું છું, meiosis 1, ठीक है। अब meiosis से क्या हो रहा है बेटा, प्राइमरी oocyte क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, ओके। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनता है। बट नाउ लेट्स टेक अप अ डायग्राम हियर, ठीक है। सो यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। नाउ दिस meiosis से इट विल अंडरगो, इट विल फॉर्म 2 cells, ठीक है। अब जब meiosis 1 हो रहा है, meiosis इज रिडक्शनल डिवीजन, द डिप्लॉइड बिकम्स हैप्लॉइड। सो देयर इज मतलब टेक्निकली these cells they divide and equal distribution of nucleus होगा, equal distribution of cytoplasm होगा, thereby leading to equal sized cell which takes place in the spermatogenesis. But यहाँ पे the cleavage, the separation is a little unequal, ठीक है। और unequal का मतलब क्या है, जो प्राइमरी oocyte ऐसा दिख रहा था, या फिर मतलब एग्जांपल दिया है, प्राइमरी oocyte जब सेल डिवाइड हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, when the cell is getting divided, nucleus तो डिवाइड हो चुका, ठीक है। तो ideally the cell has to divide, the cleavage furrow has to pass, ऐसे से पक पिंच आउट होकर निकल जाना चाहिए, 2 सेल बनना चाहिए। But in this particular case what happens is there is unequal distribution of the cytoplasm. So ovum बना और एक सेल, one of the cell, the dividing cell, one of the cell takes up maximum amount of cytoplasm and the other cell does not get any cytoplasm. समझा बेटा। तो घूम फिर कर बात ये है बेटा, because ovum is a large cell, it is ovum can be seen through your naked eye, right? Absolute drop of water के जैसा दिखता है वो। तो घूम फिर कर बात ये है कि ओवम को अगर बहुत बड़ा साइज बनना है ना, it has to provide the growing environment for that dividing cells, chromosomes की division होगी, वो सब चीजों के लिए the ovum has to accept these sperm cells, एक पूरे सेल को एक्सेप्ट करना, तो it has to become a larger cell. So meiosis 1 में the oocyte undergoes unequal cytokinesis, ठीक है। Karyokinesis, that is nuclear division equally होता है, but cytoplasmic division is unequal. One of the cell takes up maximum cytoplasm and दूसरे सेल के पास cytoplasm बचा ही नहीं, उसके पास सिर्फ genetic nuclear material बचता है, ठीक है। So unequal, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा, unequal cytokinesis leads to the formation of a large cell, and this is haploid, ठीक है, and a small polar body. So this is referred to as your polar body. पोलर बॉडी का फंक्शन की बात करेंगे 2 मिनट में, 2 मिनट, ठीक है। और आज पूछे सेकेंडरी oocyte कब हुआ है तमाशा, प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte में कब डेवलपमेंट हो रहा है, इट टेक्स प्लेस इन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इन द आफ्टर प्यूबर्टी, इन दी 14 डेज, जो पहला 14 डेज में हम जो बात कर रहे हैं ना, तो पहले 14 डेज में डे 1 में प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte अब बन गया सेकेंडरी oocyte, दैट इज इनसाइड द सेल, उसके आसपास ग्रैन्युलोसा सेल्स अटैच हो रहे हैं, वो तो डिफरेंट ओवरी के सेल्स है बेटा, ठीक है बेटा। तो पोलर बॉडी के पास कुछ भी बचा ही नहीं ना, तो क्या करेगा, पोलर बॉडी डिटरमाइंस द पोल, नाम पोलर बॉडी दिया है, ठीक है। तो जब ये सेल डिवाइड होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हेन द सेल डिवाइड्स, वन ऑफ द सेल टेक्स अप मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, दूसरे सेल के पास कुछ भी नहीं बचता है, तो इट रिमेन्स, द पोलर बॉडी रिमेन्स एट द कॉर्नर, इट रिमेन्स एज अ स्मॉल डेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट इज पोलर बॉडी। अब ये कब हुआ, इधर से लेकर इधर तक कब हुआ,
puberty in the first 14 days. After puberty, that in the first 14 days. ठीक है, मतलब घूम फिर कर एक और क्वेश्चन आपको इधर मैं आंसर कर रहा हूं, दैट इज व्हाट इज ओव्यूलेटेड इज द सेकेंडरी oocyte. ठीक है, इट इज नॉट अ matured ovum. So what ovulates is the secondary oocyte. Very important. ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया oocyte, मेरे को चेंज कर दे दो इसका स्ट्रक्चर. क्या बोला मैंने आपको, वापस रिपीट करो चलो मेरे पीछे, है ना. क्या बोला मैंने आपको कि जो ओव्यूलेट होता है that is not a matured ovum, it is the egg is ovulated in which stage? It is ovulated in the secondary oocyte stage. ठीक है, you don't have to remember the कौन से स्टेज पे अरेस्टेड है, ये सब आपको याद नहीं रखना बिकॉज़ आपने मियोसिस ही बहुत डिटेल में किया नहीं है. ठीक है, बॉटनी वाले सर को बोल देना मियोसिस पढ़ाने एक बार, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा. बट अगर मियोसिस आपने पढ़ा नहीं है तो यू डोंट रिक्वायर दैट मच. ठीक है, समझी क्या बेटा. तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, कब रिलीज होता है? बाय द एक्शन ऑफ LH एंड इट ओव्यूलेट्स, इट कम्स आउट ऑफ द ओवरी. ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte से, तो सेकेंडरी oocyte से बनना क्या है हमको? मैच्योर ओवम बनना है. तो सेकेंडरी oocyte, अब ये तो पोलर बॉडी तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, अब मेरी जो पूरा फोकस है वो यहाँ पे है. सो द सेकेंडरी oocyte जो है, द सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो meiosis 2. ठीक है, सेकेंडरी oocyte will undergo meiosis 2. तो meiosis 2 में भी there is secondary, मतलब unequal division, मतलब यही सेल replicate होगा, and when there is cytokinesis again there is unequal distribution. So one of the body becomes, so this is the first polar body, this is the second polar body. ठीक है बेटा, तो ये जो हमने बनाया है दैट इज अ ओवम. तो ओवम, अब ओवम बहुत सारे, ओवम इज सेकेंडरी oocyte प्लस द कोरोना रेडिएटर सेल्स इज कॉल्ड एज द ओवम. एक बार ये फर्टिलाइजेशन, मतलब सेकेंडरी oocyte से बनना क्या चाहिए? ooted. समझ में आ रहा है बेटा? ooted. तो यहां पे जो बनेगा दैट इज योर ooted. सो द सेकेंडरी oocyte विल फॉर्म, द सेकेंडरी oocyte will form a matured structure and this now matured structure is called as ooted. आपण haploid છે, आपण haploid છે, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा. तो इन अदर वर्ड्स, अगर मैंने यहाँ पे बनाया है तो हियर मेरे को एक पोलर बॉडी बनानी चाहिए, दो पोलर बॉडी बननी चाहिए, एक ही पोलर बॉडी बनाऊंगा बिकॉज ये कब हो रहा है? दिस इज ओनली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. सो लेट अस मार्क इट हियर. व्हेन डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? यहां पे लिखता हूं मैं, दिस इज मियोसिस, मियोसिस 2. ठीक है, मियोसिस 2. પછી इधर से लेकर इधर तक कहां पे हो रहा है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. Every stage, if you very carefully see, every stage is taking place with a break. ठीक है, यहां से यहां ब्रेक, यहां से यहां होने के बाद ब्रेक है, यहां से यहां होने के बाद ब्रेक है. फिर ये जो है, इट इज अस्टॉनिशिंग नो दैट सेकेंडरी oocyte ये हुआ, बट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन द sperm cell cytoplasm, my mistake, the sperm cell plasma membrane fuses with the plasma membrane of the ovum. यहाँ पे डिवीजन चालू हो जाएगा, और डिवीजन चालू हो गया मतलब टेक्निकली अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte will become ooted, otherwise it is discarded in the form of secondary oocyte only. समझी क्यों? So in the menses the female is discarding अनफर्टिलाइज्ड ओवम, क्योंकि ओवम तो ये है, ओवम के अंदर कौन सा सेल बैठा है? ओवम के अंदर बैठा है सेकेंडरी oocyte. समझा बेटा? ठीक है. सो दैट इज ओवम. ये स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम बोला है बेटा. इसी को हम, इसको डिवाइड होने के बाद हम ooted बोलेंगे. इतना समझा बेटा? सो टेक्निकली दो पोलर बॉडी बनते हैं. ठीक है, बट अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम, इसके बेसिस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. द लेक्चर माइट गेट एक्सटेंडेड टू वन, एक्सटेंडेड फॉर
1.5 hour, so please exempt for that because I really don't want to take up this diagram for the next class. Or I can do it, I will have to make up 2 lectures for now, so I really don't want to do it because I've drawn it. So let us complete it with this section only. चलो मानते हैं, क्वेश्चन क्या है वो कुछ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक पोलर बॉडी बना, तो घूम फिर कर स्टार्ट किससे किया हमने, एक oocyte से, एंड मियोसिस क्या बोलता है, वन व्हिच इज द मियोसाइट हियर, मियोसाइट इज द प्राइमरी oocyte. व्हाट इज अ मियोसाइट, द सेल व्हिच अंडरगोस मियोसिस इज कॉल्ड एज मियोसाइट. ये मियोसिस अंडरगो कर रहा है क्या, नहीं, तो ये माइटोटिक सेल है, ये माइटोटिक सेल है, whereas primary oocyte is the meiotic cell, whereas secondary oocyte is the mitotic cell again. क्यों, because secondary oocyte undergoes meiosis 2 and meiosis 2 is mitosis only. ये आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आपके बॉटनी के टीचर को कि माइटोसिस मियोसिस पढ़ाओ, ठीक है। और वैसे भी वो स्टेट को वो टॉपिक है, आप नेक्स्ट ईयर डिटेल में पढ़ने वाले हो, बट बेसिक आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte is the meiocyte, secondary oocyte is not the meiocyte because secondary oocyte is mitosis undergo कर रहा है, and that mitosis meiosis 2 is nothing but mitosis because इधर क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हो रहा, पर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, समझा बेटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेकेंड पोलर बॉडी, अब मान के बाद ये है कि वन सेल अंडरगोज मियोसिस, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, वन सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड गैमेट। बट यहाँ पे कितने हैप्लॉइड गैमेट बन रहे हैं, सिर्फ एक ही हैप्लॉइड गैमेट बन रहे हैं। तो घूम फिर कर बात ये है कि आउट ऑफ दी 4, मतलब 1 गिव्स राइज टू 4 एंड आउट ऑफ दीस 4, ठीक है, आउट ऑफ दिस 4 ओनली 1 फॉर्म्स अ मैच्योर स्ट्रक्चर, बाकी के तीनों जो है दे विल डीजेनरेट। पर यहाँ पे डीजेनरेशन तो 2 ही का दिख रहा है, ये एक सेल डिवाइडेड इनटू 2, ये एक सेल फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, मियोसिस 1 हो रहा है, जहां पे इट फॉर्म्स सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसका डिवीजन होगा बिकॉज़ ये डिवीजन करने के काबिलियत में नहीं है, सो दिस विल अंडरगो डिवीजन एंड इट विल फॉर्म द सेकंड पोलर बॉडी ऑफ द ooted. तो वेयर डिड वन गो, मतलब हमारे लॉजिक में तो मेरे को एक ही वन मियोसिस इज गिवन मी 1 ovum, 1 ooted, ठीक है, 1 matured gamete. Then technically where should 3 go? I could get 2. मेरे को 2 तो मिल गए, 2 डीजेनरेट हो गए बिकॉज़ अल्टीमेटली पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाता है बेटा। पोलर बॉडी को पोलर नाम क्यों दिया है, बिकॉज़ इट डिसाइड्स द एनिमल पोल। जब एक एम्ब्रियो फॉर्म होगा ना, तो ये डिसाइड करता है कि कौन से एंड से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड जनरली दिस इज आल्सो सेड कि जहां पे पोलर बॉडी होते हैं, पोलर बॉडी एक पोल की तरफ, पोलर का नाम ही इसलिए दिया बिकॉज़ दैट विल फॉर्म द पोल, ठीक है। एंड उस पोल से जो ग्रोइंग सेल्स है, एम्ब्रियो के सेल्स है, वो बनेंगे, मतलब बच्चा उस पोल से फॉर्मेशन चालू होगा, हेंस पोलर बॉडी, दोस बॉडी डिटरमाइन द पोल। And generally it is said, in some books it is given that polar body के आसपास ही sperm penetration होता है, still the exact cause for this is not very clearly known to us, ठीक है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ये हो रही है। अब मेरे को 2 का तो हिसाब मिल गया, where is the third one go? Where did the third one go? Ideally what I should get 1 meiosis should give me 4 haploid gametes, but ये 4 के जगह पे हमको फीमेल के केस में मिलता है ओनली 1, बाकी का 3 हम बोलते हैं कि डीजेनरेट्स। पर 3 किधर है, मेरे को तो 2 ही तो मिला, 3 किधर है, इधर एक मिला, इधर एक मिला, है ना। बट 3 मिल सकता था, प्रैक्टिकल बायोलॉजी में हमको 3 मिलेंगे, बट थियोरेटिकल बायोलॉजी में हमको 3 मिलेंगे, बट प्रैक्टिकल बायोलॉजी में 3 नहीं मिलते बेटा, ठीक है। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, ये जो देखो यहाँ पे कि एक हैप्लॉइड है, वो भी हैप्लॉइड है, इस हैप्लॉइड सेल ने डिवीजन अंडरगो किया, सो एक सेकंड पोलर बॉडी मिला। अगर ये भी डिवीजन अंडरगो करता, मतलब ये सेल डिवाइड होकर इसका एग्जिस्टेंस चला गया और ये 2 बन गए, if given a chance this particular polar body could also divide and it can form 2. अगर बाय चांस ये डिवाइड होकर 2 बनाता है तो मेरी कैलकुलेशन तो मिल गई, 3, 1 2 3।
बट प्रैक्टिकल बायोलॉजी में दिस पर्टिकुलर पोलर बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएट और इट डज नॉट डिवाइड. सो अगर मेरे को कैलकुलेशंस करनी है, अगर मेरे को कुछ ऐसे सम्स करने हैं तो जिसमें मेरे को नंबर ऑफ मियोसिस फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ माइटोसिस फाइंड आउट करना है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल हैव टू कंसीडर द थियोरेटिकल नॉलेज दैट इज 3 डीजेनरेट्स. इतना समझा बेटा? तो बहुत ही बड़ा टॉपिक था oogenesis. ठीक है, इसको खत्म कर लेते हैं. इसको मैं इरेज कर रहा हूं अभी यहाँ पे. ठीक है, आई एम पुटिंग अप वन क्वेश्चन एंड वी विल सॉल्व दैट वन क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू 3 questions for homework or 4 questions for homework. Let's keep up that round figure of 5 and it is pretty easy for you guys. अगर ये प्रोसेस समझा है तो बहुत ही इजी होगा. मैंने भी इरेज कर दिया इससे पहले के इस पे स्क्रीनशॉट निकाल कर आप आपके नोट्स बना सकते हो. All right. So the first question which we'll be discussing it. How many? Please write down this question. How many meiosis is required to form? How many meiosis is required to form 400 zygotes? ठीक है, 400 zygote बनाने हैं आपको, 400 डिप्लॉइड सेल बनाने हैं, तो आपको कितने मियोसिस लगेंगे? चलो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. 400 zygote दिया है. ठीक है, तो 400 zygote के लिए मेरे को कितने 400 स्पर्म सेल्स लगेंगे एंड 400 ओवम के सेल्स लगेंगे. बिल्कुल है ना. 400 zygote बनाने के लिए देयर इज फ्यूजन ऑफ, आई शुड हैव 400 स्पर्म्स एंड 400 ओवम. ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेल के केस में क्या हो रहा है, 1 meiosis gives rise to 4 haploid cells. 1 diploid cell gives rise to 4 haploid cells. तो कितना मिल रहा है मेरे को? 400 sperms चाहिए. So one particular meiocyte, that is primary spermatocyte, will form 4 sperms. So how many meiosis is required for forming 400 sperms? So मतलब 1 meiosis, this is meiosis. एक मिनट, इसको ऐसे आपको याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, meiosis versus number of gamete. ठीक है, अगर एक meiosis हुआ तो कितने गैमेट्स बन रहे हैं? 4 गैमेट बन रहे हैं, है ना. तो कितने गैमेट चाहिए मेरे को? 400. तो 400 के लिए कितना? ये सब वो बच्चे जो क्या बहुत कैलकुलेशन फास्ट नहीं करते. सो घूम फिर कर बात यही आ रहा है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देयरफॉर नंबर ऑफ meiosis इज इक्वल टू 100. तो घूम फिर कर बात यह है कि 100 स्पर्म्स के लिए मेरे को कितने meiosis चाहिए? 100 meiosis इज रिक्वायर्ड. माय मिस्टेक, 400 स्पर्म्स के लिए कितने meiosis चाहिए बेटा? 100 meiosis इज रिक्वायर्ड. ठीक है, बट ओवम का तो अलग झोल है ना. ओवम में क्या हो रहा है? एक जनरेट हो रहा है, वन इज बीइंग फॉर्म्ड एंड बाकी का तीनों डीजेनरेट हो रहा है. सो हियर लेट्स राइट इट, meiosis, नंबर ऑफ गैमेट. अगर एक meiosis हुआ तो आइडियली मेरे को 4 मिलने चाहिए, बट 4 में से 3 डीजेनरेट होते हैं तो मेरे को एक ही मिलता है. ठीक है, फीमेल के केस में. सो फॉर 400 meiosis you will require 400 meiosis. 400 गैमेट ओवम के लिए आपको चाहिए 400 meiosis. सो टोटल meiosis कितने हुए? 400 फीमेल को बंद करने पड़ेंगे और 100 मेल को करने पड़ेंगे. So therefore total number is 500. So for formation of 400 zygotes you require 500 rounds of meiosis. समझा बेटा? ओके, चलो एक और क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं मैं, होमवर्क क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं. How many meiosis is required for 700 zygotes
150 zygotes 150 का आपको पॉइंट में आएगा बेटा आंसर, तो 120 ले लेते हैं अपन। ओके ओके 900 भी नहीं है, इसको मेरे को 600 लेना पड़ेगा। चलो करके देख लो 700 का क्या आंसर आता है मेरे को बताना, ठीक है। अगर 700 के आंसर मेरे को चुपके से इधर निकाल दो, आ जाता बेटा 700 का भी आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। इतना आप कर लो, तो अगर 700 का आंसर आ सकता है तो मुझे लग रहा है 900 का भी आंसर आना चाहिए। दोनों का आंसर फाइंड आउट कर लो। ये तीन आपके होमवर्क है, ये तीन दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल हैव टू कॉपी इट, सो आई विल हैव टू इरेज दिस सेक्शन आल्सो, ठीक है। For now I will keep it there. The last topic of today's class is structure of ovum and structure of sperm. फटाफट से स्ट्रक्चर का नाम याद कर लेंगे, बिकॉज़ आपको इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, ठीक है। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी, ठीक है। और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर दिख रहे हो आप, इट इज जस्ट लाइक इट हैज अ लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर। नाउ दिस लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर इज द फ्लैजेला, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फ्लैजेला द स्पर्म गेट्स अ मोटिलिटी। The sperm has to swim over a long distance. It has to swim over from the testis. It has to swim to the female reproductive tract. ठीक है। और one sperm can be alive in the female reproductive tract for 4 days, whereas ovum can be alive for only 1 day, 24 hours. ठीक है। मतलब this male gamete can, after traveling, it can remain in the female tract alive for 4 days. But female reproductive tract में जो ovum ovulate हो रही है, 14th day पे अगर ovulation हुआ, उसी दिन fertilization होना चाहिए। Again, this is again a matter of chance, ठीक है। अगर उसी दिन fertilize हो रहा है, ठीक है, उसी दिन fertilize हो रहा है, तो हम बच्चे की expectation रख सकते हैं। Otherwise ये कुदरत का करिश्मा है, अदरवाइज इट्स गॉन, द चांस इज एब्सोल्युटली लॉस्ट। द फीमेल विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 1 more month। इसलिए बहुत सारे जो कपल्स लोग को बहुत ऐसे तीव्र इच्छा होती है बच्चे होने की, सो दे लुक आउट फॉर अ सेफ पीरियड एंड देन दे लुक आउट फॉर अ रिस्क पीरियड, ठीक है। अब रिस्क, उनको बच्चे चाहिए, है ना, बच्चे अगर चाहिए तो आपको रिस्क पीरियड में अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना एडवाइजेबल है, ठीक है। एंड दैट रिस्क पीरियड इज 10 days इन एन एवरेज। 10 days का बफर है विद इन दैट 14 days। मतलब 14th डे को आप बीच का नंबर कंसीडर करोगे तो उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, तो ऑन एन एवरेज वो 10 दिन का, मतलब 7 से लेकर 20 ऑन एन एवरेज, नहीं 7 से लेकर 10, माय मिस्टेक, 1 सेकंड। तो अगर मैंने सेफ पीरियड की कैलकुलेशन कर ली, यहाँ पे अगर मैंने 14 कंसीडर कर रहा हूं तो 14 9th से लेकर ऑन एन एवरेज 20 नहीं, हाँ 20 कंसीडर कर लो, ठीक है। 10 से लेकर 20 भी कंसीडर कर सकते हो आप ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो 10 दिन का आपको बफर मिल जाता है। सो 10 days, मतलब अगर ओव्यूलेशन 14 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इट कैन टेक प्लेस ऑन द 13th आल्सो, it can take place on the 12th also, it can take place on the 15th and it can take place on the 16th also. So ये risk period है। So जो couple है who are wishing to have a child, they will have to try their charisma in this particular risk period. और आगे पीछे का जो टाइम है ना, that is safe period, मतलब तभी the couple is absolutely rest assured कि बच्चे तो नहीं होने वाले, कुछ भी कर लो, ठीक है। चलो quickly we will finish up this particular section also,
ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द मेल स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। अब स्ट्रक्चर ऑफ द oogenesis क्योंकि किया है तो पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम कंप्लीट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सो व्हेन दिस पर्टिकुलर सेल्स दे फॉर्म सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जब ओव्यूलेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एन ओवम। Ultra structure of the ovum. So secondary oocyte has this particular structure is your secondary oocyte. Secondary oocyte जो अंदर बैठा है, ठीक है, पूरा का पूरा यूनियन, पूरा का पूरा apparatus को हम बोलेंगे दी, apparatus को हम बोलेंगे ovum, ठीक है बेटा, okay. So that is your secondary oocyte. Then this is your first polar body. ये आपका फर्स्ट पोलर बॉडी है। तो जब सेल डिवाइड होंगे तो वन ऑफ द सेल इज टेकन मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, दूसरे को कुछ भी नहीं मिला तो दूसरा एक स्पेस के अंदर चले जाता है। देयर इज अ स्पेस व्हिच इज एसोसिएटेड एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज, आई विल इरेज दिस सेक्शन नाउ। सो द सेकंड, अभी यहां पे एक ही पोलर बॉडी बनाया है हमने बिकॉज़ वी आर ड्राइंग ओवम एंड नॉट ooted। सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगा? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फटाक से हो जाता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द स्पेस बेयरिंग और द स्पेस केप्ट फॉर अकोमोडेशन ऑफ पोलर बॉडी इज रेफर्ड टू एज पेरीवाइटिलिन स्पेस। पेरीवाइटिलिन स्पेस, सो पेरीवाइटिलिन स्पेस हैज द पोलर बॉडी, ठीक है। પછી उसके आसपास देयर इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, अब थिक, जैसे एग है ना, फर्टिलाइज्ड एग को भी एक हार्ड कैल्शियम की शेल होती है, मुर्गी के अंडे की बात हो रही है, ठीक है। वैसे ही ओवम आल्सो हैज अ प्रोटेक्टेड ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, अ टफ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, एंड दिस टफ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इज कॉल्ड एज ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ज़ोना पेलुसिडा, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। ज़ोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करके स्पर्म को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, मतलब स्पर्म को भी इजी रास्ता नहीं है इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। स्पर्म को ये पूरे के पूरे गुच्छे जो सेल्स दिख रहे हैं आपको कोरोना रेडिएटा, उसको डिस्ट्रॉय करके उसके बीच में से जगह बनाकर ज़ोना पेलुसिडा में होल बोर करके अंदर जाना है। सो इट इज अ टफ टास्क। देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ ऑडिशंस व्हिच आर बीन गिवन बाय दिस स्पर्म, राइट। So come back, zona pellucida, which is a glycoprotein layer. Zona pellucida is the glycoprotein layer. ठीक है, और the neighboring cells which you can see here, these are a modification of granulosa cells. अब मैं उसको granulosa cells इसलिए बोल रहा था because वो अभी तक ओवरी के अंदर थे और वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने का काम कर रहे थे, बट वंस दे आर आउट ऑफ द ओवरी, नाउ द सेल्स चेंज द नेम एंड लिटिल बिट ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो चेंज्ड। दे हैव दिस रेडिएटिंग स्ट्रक्चर जो सनफ्लावर अपीयरेंस देता है। दैट रेडिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। कोरोना refers to crown, रेडिएटा मतलब रेडिएटिंग क्राउन, इट अपीयर्स लाइक अ सन, ठीक है। सो कोरोना रेडिएटा, सो जो ओवम है उसका जो उसके अराउंड, फर्स्ट ओवम के अराउंड स्पेस है, दैट इज पेरीवाइटिलिन स्पेस। पेरीवाइटिलिन स्पेस की बात है ज़ोना पेलुसिडा। नाउ ज़ोना पेलुसिडा सिंस ओवम के बहुत क्लोज कांटेक्ट में है, इमीडिएट कांटेक्ट में है, सो दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, मेंबर बोल दोगे, मेम्ब्रेन पूरा लिख दो। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के पास दूसरा लेयर है पूरे सेल्स का, कोरोना रेडिएटा, व्हिच इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, समझी गए बेटा, ठीक है। तो इतना हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, very easy. Now let's get back to the structure of sperm cells, ठीक है। Now if you look at this particular structure, the sperm cell has very less amount of cytoplasm. At the anteriormost region of the sperm cell, there is, at the anteriormost region of the sperm cell, इधर जगह है, मैं इधर बना रहा हूं, there is a small vesicle and this vesicle is called as acrosome, ठीक है। That acrosome is produced by the Golgi body, ठीक है। Acrosome contains
sperm lysine. Acrosome contains sperm lysine. Contains sperm lysine. Now sperm lysine is collection of sperm lysine जो it is nothing but aggregation of certain proteolytic enzymes. Because देखो ये sperm lysine it is just like a capsule, ये फूटेगा तो जब acrosome disperse होगा, acrosome will release sperm lysine and the sperm lysine will be able to create, digest या क्या उसको lysis of these cells, ये लेयर का lysis करवाएगा. lysis मतलब आप समझ रहे हो प्रोटियोलिटिक है, ठीक है. so it is degenerating. so sperm lysine जो है it helps in the sperm penetration. ये next topic है fertilization का. समझा बेटा? and there is a nucleus, a large nucleus, ठीक है. एक्रोसोम से लेकर न्यूक्लियस का पूरा जो रीजन है, यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है दैट्स कॉल्ड एज द हेड ऑफ द स्पर्म. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद दिस रीजन इज कॉल्ड एज द नेक ऑफ द स्पर्म. Now neck of the sperm bears two centrioles. ठीक है, neck of the sperm bears, this is the primary centriole या proximal centriole, that is much more clearer, proximal centriole, and दूसरा जो दूर है that is called as distal centriole. ठीक है, primary centriole plays a role in cleavage. मतलब अभी इसका कोई रोल नहीं है, बट जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा प्राइमरी सेंट्रियोल या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल will have its function in the cleavage. ठीक है, whereas distal centriole का काम क्या है? formation of flagella. ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सियल फिलामेंट जो हमने बनाया है बेटा, दैट एक्सियल, ठीक है, दैट एक्सियल फिलामेंट, इधर जगह नहीं इसलिए हमको मैनेज करना पड़ रहा है. दिस एक्सियल फिलामेंट, ये जो हमने बनाया ना, दैट इज द एक्सियल फिलामेंट. ये एक्सियल फिलामेंट इज द स्कैफोल्ड, ढांचा फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैजेला. तो डिस्टल सेंट्रियोल फ्लैजेला फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम इसी में फंक्शन भी लिखा रहा हूं. काम क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या है? क्लीवेज. ठीक है, अराउंड दैट यू विल हैव स्पाइरली प्लेस्ड माइटोकॉन्ड्रिया. स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया serves as the basic source of powerhouse for the cell. ठीक है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है विद रिस्पेक्ट टू द स्पर्म सेल्स. And at the distal part there is one more ringed centriole. That ring centriole is called as annulus. ठीक है, annulus. And the annulus का function is not known. तो भूल जाओ, function is not known. So annulus का function is not known. And then posteriorly you have a flagella, tail piece. ठीक है, तो flagella जो है, ये axial filament जो है, axial filament के around there is a protein complex. It is a protein complex, protein layer. मतलब आप समझ रहे हो ना बेटा कि एक्सियल फिलामेंट एक प्रोटीन का पूरा लेयर है, पूरा का पूरा ऐसे रॉड लाइक या स्ट्रक्चर बन रहा है. मतलब इट इज जस्ट लाइक अ स्कैफोल्ड, और उसके अराउंड प्रोटीन शीट होगी. प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने लिखा है गलत हो गया बेटा, कंपोनेंट होना चाहिए या फिर प्रोटीन शीट होनी चाहिए. सो इस ढांचे के ऊपर, एक्सियल फिलामेंट के ऊपर प्रोटीन की शीट बनती है एंड अल्टीमेटली इट गिव्स राइज टू फ्लैजेला. ठीक है, और लास्ट में दैट इज देयर इज अ एंड पीस. ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक दिस इज कॉल्ड एज द मिडिल पीस. ठीक है, मिडिल पीस में क्या क्या चीजें आ गई बेटा? एक्सियल फिलामेंट एंड एक्सियल फिलामेंट, रिंग न्यूक्लियस दैट इज रिंग सेंट्रियोल कॉल्ड एज annulus, and you have the
स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक रीजन में क्या क्या है? ओनली दी सेंट्रियोल पार्ट, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। हेड रीजन में क्या क्या है? एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, और लास्ट का जो पूरा का पूरा शेंडी है दैट इज योर टेल रीजन। और टेल रीजन में क्या है? सिर्फ फ्लैजेला। समझी क्यों? ठीक है। So that ends with your today's class. We have completed this section successfully. We will be taking up a new topic, that is fertilization, in the next class. बस खत्म होने वाला चैप्टर और मेरे को लगेंगे 2 से 3 lectures maximum. 2 से 3 lectures for this chapter, and post that 2 more lectures for the other chapter. So 5 lectures with this particular unit gets over. Then we have one more unit that is almost done. I have evolution to be completed with the CBSE part. ठीक है, that's all for today. Take care of yourself. I don't have any hit vachan to tell you today, so that is okay. ना, take care of yourself. Enjoy. Don't keep enjoying all the time. ठीक है, मैंने पहले ऐसे बोल दिया. ठीक है, keep yourself a little more contented. Do a little bit of self analysis. ये सब चीजें मैं आपको बताते रहता हूँ, है ना? तो try and develop your intellectual ability. See, that is all for today. Take care of yourself. Bye bye.